Hello, everyone. Almost everyone keeps asking this question that how to prepare short, concise notes. Let me tell you a brief context here about myself. When I started my preparation, I used to think that separate folders में organized notes बना के एक proper perfect notes जब मेरे बन जाएंगे, then I'll be able to clear this exam confidently and with a good rank. Eventually, when I cleared the exam, I noticed that I didn't had all the perfect notes. I only had two, three things with me. One is the standard book which I referred, where I jotted down some points, highlighted, underlined some keywords. Other than that, I had a short notes of some topics, not for every subject. Like IR पे है, कोई particular issue पे है. So like that, I used to have short notes, and in fact, not short notes, the revision sheets kind of thing. So I used to refer that only. Other than these two, I only had visuals, maps, memory networks inside my head, which I used for processing. So what I want to tell you here is that एक परफेक्ट नोट्स बनाना या इनिशियल रीडिंग्स में नोट्स के बारे में चिंता करना हमारा बहुत सारा टाइम ले जाता है, हमारी बहुत एनर्जी चली जाती है, बट वो उतना फ्रूटफुल नहीं होता. सो हियर आई वांट टू एम्फसाइज कि इफ यू आर समवन हु इज वेरी बॉदर्ड अबाउट नोट मेकिंग, especially when you are in the initial phases of preparation. For example, you are in the first attempt, or you are a repeater but you have not done your foundation very well. So do not get bothered about note making as of now. Just focus on firstly the understanding from whatever source you refer. Jesse, when we start our preparation, see, we have either a book with us or we have class notes. If you are a part of coaching, so यही दोनों ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, ये आपकी कोई भी स्टैंडर्ड बुक होगी और ये आपके जो क्लास के नोट्स बनाए. सो ईदर यू मेक योर बुक द सोल बेस नोट फॉर यू, जिसमें कि आपने पॉइंट्स वगैरह ऐड कर दिए, ठीक है, हाइलाइटिंग कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, एंड देन दीज आर योर बेस नोट. बेस नोट्स आर फॉर योर रेफरेंस इनिशियली, जिससे आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी थी. तो बेसिकली दे गिव यू अ सेंस ऑफ confidence wherein you can go through the entire chapter or entire topic again, जिसमें आपके बेसिक्स कवर हो गए, आपको वो आइडिया, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे जो भी चीजें आपने विजुअल्स में, डायग्राम्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझी थी, वो सारी होंगी. ठीक है, सो ये बेस नोट्स इधर आप अपने बुक को पर्सनलाइज करके बनाते हो. कैसे? जो भी चीजें आपने सीखी समझी वो आप उसमें एड ऑन कर रहे हो. और अगर आप क्लास नोट्स को ही अपना आगे प्रेफर करना चाहते हो, सो इफ यू आर रीडिंग बुक और इफ यू आर रेफरिंग टू करंट अफेयर्स, तो यहीं पे हम एड ऑन करेंगे. एनी एड ऑन एंड अगेन बिकम्स योर बेस नोट्स. तो व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट हियर इज कि बेस नोट्स जो हैं आपके, ये इनिशियली थोड़े हैवी होंगे. ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिए, प्लीज डू नॉट रेप्लिकेट द एंटायर बुक इफ यू आर मेकिंग इट फ्रॉम यू नो इफ यू आर मेकिंग थ्रू योर ओन पेन एंड कॉपी. तो उस केस में आपको सिर्फ कुछ ही चीजें लिखनी है, बेयर मिनिमम, जिसको आप रेफर करके यू कैन गेट रिमाइंडेड ऑफ योर सेल्फ अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक. तो दिस विल बिकम योर बेस नोट. नाउ यहाँ से जो मेन हमारा क्वेश्चन था कि यहाँ से हम कंसाइज नोट्स पे कैसे आए. सी इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कैसे, मैं अभी आती हूँ उस पर, बट बिफोर दैट सी बेस नोट्स जो हैं हमारे, यहाँ से हमें जाना होता है शॉर्ट नोट्स पे. These short notes are exactly where you're able to eliminate the sentences. For example, कोई grammatical चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है. You can just point out to one thing. You are here writing in one or two liners only. ठीक है, which is expected from you in mains examinations. So ये कब समझ में आएगा आपको कि किस टाइप के सेंटेंसेस लिखने हैं? इसकी समझ आपको आएगी आफ्टर टेस्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट मेन्स स्पेसिफिकली हियर. ओके, सो व्हेन यू गिव टेस्ट, when you write a particular answer, you get to know this, I am
maybe trying to write anything in 4 to 5 lines. I am writing in paragraphs. I need to convert this paragraph into 1 or 2 line. Now you know कि maybe I am doing this because base notes में काफी heavy लिखा होता है. You have information overload. Okay, so that infodemic restricts you from writing point to point and short sentences. तो जब वहां से इस टेस्ट के एनालिसिस के थ्रू आपको जब समझ में आएगा और फिर आपको पता लगेगा कि नाउ आई नीड टू राइट दिस 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 इन माई नोट, वो आपके सेंटेंसेस आपको तब क्लैरिफाई होंगे. ओके, सो दीज शॉर्ट नोट्स यू नीड टू प्रिपेयर आफ्टर प्रैक्टिसिंग एंड एनालाइजिंग. ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि हमें कब नोट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं वो तो ठीक है. वाई, फाइन. हाउ टू मेक नोट्स, व्हेन टू मेक नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दीज आर द शॉर्ट नोट्स. इसके बाद भी इनफैक्ट यू नीड सम अदर नोट्स. अगर मैं आपको क्रोनोलॉजी बताऊं तो बेस नोट्स, देन योर शॉर्ट नोट्स, एंड दिस विल कम प्रोबेबली आफ्टर डूइंग योर फाउंडेशन व्हेन यू आर कंसोलिडेटिंग. ओके, तो कंसोलिडेशन के फेज में आपके पास में ये आएगा. देन यू नीड टू मेक योर रिविजन शीट्स, रैपिड रिविजन शीट्स, also called as repositories. Here you are not writing sentences. Okay, क्या चीजें एलिमिनेट हो रही है मैं बता देती हूँ. यहाँ पे आप you're writing full, या आप लिख रहे हो. Here you're writing short sentences. Okay, and here you are writing only keywords or datas or committees, definitions, like this. All these things which you exactly want to write in your mains. Exactly. मतलब ये आपको पता है ना, जब आपने शॉर्ट नोट्स बनाए आपने एंड यू अगेन ट्राई टू राइट सम टेस्ट और यू वर ट्राइंग टू जस्ट रिकॉल. सो नाउ यू नो कि कुछ चीजें अभी मैं भूल रहा हूँ, है ना. I am not having enough recall of the keywords or any particular definition. So उस केस में आपको एक separate चाहिए होगा. बार बार आप इसे रेफर करोगे, it will take a lot of your time, especially when you are just writing mains. So these actually revision sheets ये आपको अभी नहीं बनेंगी. Let's say you are giving 2027. Okay, so अभी नहीं बनेंगी. Okay, अभी बनानी भी नहीं है in fact. If you want, probably you can make it, but these will not be your final revision sheets. Okay, this will keep on evolving. Why so? Because हमारा mind evolve कर रहा होता है time to time. हमारे जो information है, हमारी processing है, that keeps on getting matured through your gradual improvement. So we cannot expect us to prepare that kind of notes जो मुझे exactly as it is means में काम आ जाएंगे directly. ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है. ठीक है. सो आपको भी अगर आप 27 दे रहे हो, सो यू शुड फोकस फर्स्टली हेयर, देन हेयर, और फिर ये आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं पोस्ट प्रीलिम्स बना लूं. ठीक है, पोस्ट प्री आपको आइडिया लगने लगेगा व्हेन यू विल बी राइटिंग एफएलटीज ऑन रेगुलर बेसिस, है ना. हर वीकेंड्स पे, हर 10th डे पे जब आप दोगे आपको आइडिया लगेगा. एंड पीपल हु आर गिविंग 2026 अभी, तो दे मस्ट हैव, इनके पास तो मस्ट है एंड बना भी लिया होगा. आई नीड नॉट टेल दिस. ठीक है, सो ये आपके पास होना ही चाहिए. नहीं है इन केस अभी भी किसी के पास 2026 वालों, सो प्लीज मेक इट, है ना. कहाँ से बनाओगे आप? बेस्ट सोर्स है, आपने जो भी टेस्ट दिए हैं एंड वट एवर यू हैव रिफ्लेक्टेड ऑन ऑल दीज थिंग्स, तो वहां से आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा दैट आई कीप ऑन फॉरगेटिंग, आई कीप ऑन रिपीटिंग द एग्जैक्ट सेम लाइन, सो आई नीड बेटर या ऑल्टरनेटिव फ्रेजेस. उसके लिए आप बना लोगे, है ना. अभी भी टाइम है, आप बना सकते हो बहुत ही छोटे से. देन क्या चीजें नहीं करनी है इसमें? सी, इन योर बेस नोट्स वी, इसमें तो सारी चीजें आप कर सकते हो. यू कैन ईदर हाईलाइट हेयर, अंडरलाइन हेयर, ये सारी चीजें करोगे आप, बिकॉज दिस यू विल रेफर फॉर फर्दर नोट्स, यानी कि शॉर्ट नोट्स जब आप बनाओगे. तो ये चीजें आप कब करेंगे? जब आप इसे रिवाइज करेंगे. ऑब्वियसली दिस बेस नोट्स यू हैव टू रिवाइज minimum 2-3 times. This is minimum. People do revise for 4 to 5 times as well from here only. क्यों करते हैं उसका रीजन अभी हम देख लेंगे. बट जब आप ये रिवाइज कर रहे हैं ना, while you revise,
तो सेकंड रीडिंग में आपको कुछ चीजें हाईलाइट करनी होंगी, कुछ अंडरलाइन करना होगा, सो यू कैन बेसिकली स्टार्ट स्पेशली विथ पेंसिल, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं बचपन से लेके अब तक, उसी हिसाब से लेट्स से यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी ग्रेइश पेन या पेंसिल ऐसे, एंड देन यू कीप ऑन अंडरलाइनिंग वट एवर यू फील इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको लगता है सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सो डू नॉट यूज हाईलाइटर, प्लीज डू नॉट यूज इट, because then you'll end up highlighting all the notes. So start with a light color pen or pencil. वहां से आप करो, आप सेकेंड रीडिंग पे आओगे जब, ठीक है। सो सेकेंड रीडिंग पे you'll have more idea about the important phrases, important concepts. So you will underline that with red pen, green pen, किसी भी different pen से आपने किया, and then आप थर्ड रीडिंग पे आओगे, फिर you'll realize that I keep on forgetting this particular सेंटेंस, या फिर कोई वोकैब है ना, आपके लिए नहीं थी, तो आपको नहीं याद हो रही है, वो भूल जा रहे हो आप बार बार, या कोई डेटा है, कोई मेजोरिटी का केस है ना, जैसे वी स्टडी टाइप्स ऑफ मेजोरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, या फिर इन जनरल अमेंडमेंट्स, ठीक है, सिंपल और मेजोरिटी वाले। सो डिफरेंट काइंड ऑफ मेजोरिटीज जब आप पढ़ते हो, सो इफ यू फॉरगेट, तो वहां पे भी हाईलाइट करना है क्या चीजें फॉरगेट कर जा रहे हो आप, 2/3 मेंबर्स, या टोटल कितना मेंबरशिप होनी चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग है। सो कीप ऑन डूइंग दीज थिंग्स अपने थर्ड रीडिंग में फिर, ओके। सो धीरे धीरे आप ना फिर शिफ्ट हो जाओगे, यूल नॉट रीड द एंटायर बुक, you'll just read whatever you have highlighted or have used different pens. For example, अगर कुछ environment related है, so I used to use green pen for that, ठीक है। तो मेरी एक मेमोरी एसोसिएटेड है उस कलर से, वो कलर कोडिंग आप कर सकते हो, फाइन। तो दिस इज हाउ यू आर एट कवरिंग बेस नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपने बनाए, यहाँ पे शॉर्ट सेंटेंसेस लिखे, दैट्स फाइन। क्या नहीं करना है, स्ट्रिक्टली प्लीज डू नॉट फोकस ऑन ग्रामर हियर, ठीक है। तो आपको एकदम एकदम कट टू कट बात जो करते हैं ना, कट दी क्लटर, वैसे नोट्स होने चाहिए आपके, ओके। आई विल शो यू सम सैम्पल्स एज वेल, डोंट वरी। सो रिविजन शीट्स जब आपके बना रहे हैं यहाँ रिपोजिटरीज में, आपके पास में लेट्स से दिस वन पेज, दिस इज स्पेशली फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027, यू हैव टाइम, सो यू विल लीव 1/3 पेज, है ना, 2/3 पेज पे आपको जितना भी समझ में आ रहा है वो आपने लिख लिया। ये क्यों छोड़ना है, सो दैट इफ यू हैव एनीथिंग, एनी अपडेट और एनी न्यू रिपोर्ट कम्स अप नेक्स्ट ईयर, सो आप वो चीजें यहाँ पे ऐड कर लोगे उसी टॉपिक से रिलेटेड, ओके। लेट्स से फॉरेस्ट का ही है, मान लो फॉरेस्ट सर्वे से रिलेटेड ISFR का कुछ नया आया यहाँ पे एड ऑन, ठीक है। सो इस हिसाब से आप अपना पूरा शीट एज इट इज, ऑलमोस्ट एज इट इज, यू कैन यूज इट व्हेन यू राइट मेंस 2027, फाइन। सो ये नोट्स की क्रोनोलॉजी है, एंड नाउ हाउ यू मेक these concise notes, that depends on your way of learning, okay। so first of all, when you revise, है ना, base note से या book से, when you revise, please try to identify your learning type. For example, when I started, I felt that after some time, I observed this pattern that I am not very good with rewriting. If I am rewriting the sentences, I cannot recall it properly. So it's better that I connect with various topics. I teach it to myself, or probably make some flow chart. If it's a supply chain concept, या फिर cause effect का है, like we do in agriculture. So if I have understood a particular point holistically, या फिर bio में भी it's important that you do etymology. So etymology में हम क्या करते हैं, एक बड़े सेंटेंस को ब्रेक करते हैं पार्ट्स में, वी अंडरस्टैंड द रूट वर्ड्स, द एसोसिएटेड वर्ड्स, और उसकी मीनिंग हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू लर्न अबाउट प्रोकारियोट्स, देन यू लर्न अबाउट प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। तो व्हाट इज प्रो हेयर, प्रो का यहाँ पे मतलब है बिफोर से, ठीक है। इफ देर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो specified or organized properly nuclear membrane nahi hai, so it's probably about prokaryotes, okay। Then pro-nuclear transfer is when the fusion has not happened yet, there are pro-nucleus, yani before the exact transfer aapne jo
रेफर किया है वो आपका प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर है। ओके, सो एक एक वर्ड से कैसे एसोसिएट करके आप याद रखते हो कि आपको लॉन्ग टर्म में याद रहे। सो नाउ दैट आई हैव अंडरस्टूड दिस, आई कैन नॉट फॉरगेट दिस अंटिल माई डेथ। सो ट्राई टू ट्रैक योर ओन लर्निंग कोड कि आपको किस तरीके से याद होता है, समझ के अच्छे से याद होता है, प्रोसेस करके, कनेक्ट करके, विजुअल्स बना के, एनीवेज। ओके, सो वी हैव different types. You can also refer to the memory वाला video, the science of memory I've taken. उस वीडियो को भी आप रेफर कर सकते हो, या फिर सिंपली सी, सो वी हैव अ पर्सन हु इज राइटर, ओके, हु रीराइट्स और वहां से उसको याद होता है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। इट्स नॉट दैट कि आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता है, अगर आपको लगता है कि आपको रीराइट करके होता है, एंड स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि दिस इज सेम फॉर एवरी सब्जेक्ट। ओके, समटाइम्स even I used to write definitions again and again to learn, to memorize. Okay, so जैसे हरकाइम की जो रिलीजन की डेफिनेशन है, this I learned by rewriting, not just rewriting, I again did the breakdown, उसको break down करके मैंने समझा, बार बार लिखा, so the combination of these two made me learn this memory. So now second आपका होता है, if you feel that you are a speaker, so probably you want to read aloud. Okay, so ज़्यादा बोल के या किसी को बता के probably, है ना, if you teach, then probably you will be able to learn. Or if you feel that you visualize a lot, okay, तो visualize अगर आप करते हो, आपके लिए visuals बहुत काम करेंगे, probably animations और mind maps, और वी हैव फ्लो चार्ट्स, जैसे हम एग्री में करते हैं, एग्री में पूरा इनपुट से आउटपुट तक। ओके, वी चार्ट आउट अ मैप अकॉर्डिंगली, सप्लाई चेन के अकॉर्डिंग, देन वी हैव डायग्राम्स, वी हैव मैप्स, एंड देन there's a connection. I would say it is the combination of all these things. The person who connects, if you're a person who is naturally good at it, although you have to become like this only, but initially क्या होता है कि हमें नहीं पता, so we will first identify what is our major learning type, we'll use that for our strengths, क्योंकि हमें अपने strengths पे ही खेलना है, ठीक है। then आपको पता है कि बाकी चीजों में प्रॉब्लम हो रही है, so probably you'll try to do it for some aspect. For example, maps हमेशा ही geography के लिए अच्छे होते हैं, places and news, okay, and फॉर मेन्स स्पेसिफिकली अगेन ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इस पूरे में बहुत अच्छे होते हैं मैप्स। फाइन, डायग्राम्स अगेन इफ समथिंग इज रिलेटेड टू बायो, या फिर आपकी यू नो डिफरेंट, जैसे फ्लो चार्ट्स में भी है, सो इफ यू वांट टू शो द 3-phase न्यूक्लियर प्रोग्राम। फाइन, एनिमेशन में अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करता है, मे बी क्रोनोलॉजी के लिए हेल्प करता है ना, लाइक आई रेफर्ड द हिस्ट्री वाला एनिमेशंस from Bookstava. Then mind maps, if you are someone who likes to read, है ना, at a summary level, कि मैंने एक बार पूरा पढ़ लिया है, I have done my foundation properly, especially आपने स्पेक्ट्रम में भी देखा होगा, there is summary, so वहां से ही आपको एक मेजर आइडिया लग जाता है। You can also draw a mind map, especially in cases of concepts. So either here mind maps में जैसे आपने revolutions का बना लिया, peasants movement का बना लिया, ओके, एंड फिर उसको आपने क्रोनोलॉजिकली सेट कर दिया। ओके, दिस इज हाउ यू कैन लर्न इट। in fact it will also help you to write your answer. So let's say you are referring to the analysis part of any topic, so analysis करने से पहले, just after the introduction, which is the post intro part, there you can make a diagram, or if you want to do it in under the heading, so side में, like if this is the paper, so here you can make a box और यहाँ पे आपने मैप दिखा दिया, let's say नॉर्थ वेस्टर्न एरिया दिखाना था for Indus Valley civilization and its sites and the architecture that has developed. So likewise northwestern India portion को आप यहाँ पे दिखा के you can just draw it. So how will you do that?
you have to first learn it by making the mind map and diagram. Okay, then rewrite में जैसे मैंने बोला definitions को आप learn कर सकते हो. If something is very difficult, so if anything is complex, we need to unpack the layers, we need to break down the subparts. तो जब आप break down करेंगे, then you will be able to do this. So this breakdown needs to you to rewrite. Fine. Read aloud में भी आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है, you feel low, energy low है, नहीं समझ आ रही है, probably if you read it aloud, so it keeps you engaged with the content. Okay, it varies again. So anything you identify, keep coming back to connecting the things. The more you connect various aspects, the more you will be able to understand, and then you'll be able to also devise a strategy to make short notes कि short notes में अब कहाँ बनाना है. For example, जैसे आपने sentences बनाए, एक sentence is referred to the governance portion. If you feel no, I need to cover the environmental pact here, the act which is there to govern all these things. तो आपने एक legal context भी दे दिया वहां पे, right? Then legal में अगर कोई issue चल रहा था, the example could be added. So likewise, if you can connect all these things, you'll be able to make proper dimensions while you write any topic. Fine. Next is, yeah, so these are the learning levels. And then I would like you to know, see, when we start making notes, हमें लगता है that only note making is going to help us, और notes बनाने से हमारी learning हो जाएगी. No, first you need to understand कि कहाँ पे problem आ रही है, where is that bottleneck, और वहां से फिर आपको अपने notes में changes करने हैं. So now I am going to show you some of the examples from my own notes. See, it's a combination of everything. जैसे first of all, like this is a base note from Indian society itself, salient features of Indian society. ठीक है? So here also, it's not exactly my base note. Base note मैंने किसी PDF में पढ़ा होगा. ठीक है? I'm not referring here. कुछ वहाँ पे कुछ भी नहीं किया है. Basically वहाँ पे कुछ कुछ keywords highlighted होते हैं. So I have made this my own. This is my base note since I never took coaching. So I made it myself, and I made sure that I'm using all the keywords. So keywords plus, it's very important कि salient features में क्या आएगा. What is any feature for any society? Okay, not just Indian society. So think of it in terms of society, and you'll be able to know कि हाँ Indian society के context में क्या चीजें हम use कर सकते हैं. So as you see, कितनी सारी चीजें मैंने लिखी हैं यहाँ पे. हिस्ट्री की भी बात हो रही है ना, कल्चर की भी बात हो रही है, डिफरेंट रिलीजन की बात हो रही है. Then how it is, balancing both tradition and modernity. Then unity in diversity, uske liye bhi there is example, there is context given. Then patriarchy bhi ek setup hai. Society का एक एंगल आ गया. So culture, society, various, because society का ही question है, तो society का part तो आना ही है. Then आपका political aspect भी आता है यहाँ पे. So I have also linked the caste system with the polity. म्यूचुअल रिस्पेक्ट, थोड़ा सा एक ह्यूमन साइड भी आ जाएगा. एंड देन अगेन कास्ट का जैसे है तो पुरुषोक्त, हिम ऑफ ऋग्वेद. तो दीज आर द फैक्ट्स. दिस इज हाउ, ये मेरा एकदम इनिशियल वाले नोट्स है. ठीक है, नो पार्टिंग डन हेयर, कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है. एज इट इज डायरेक्ट मुझे याद भी नहीं आया होगा इनफैक्ट. ठीक है, सो द मोर आई कुड कॉम्प्रहेंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया. देन कम्स अनदर सेट like this is for ethics. Ab this is my revision sheet, I would say. Okay, इस notes में क्या है, there is corporate governance as the topic. मैंने इसके बारे में कुछ भी ऐसा बहुत elaborate नहीं लिखा. I just refer to the Cadbury committee quote which has explained the corporate governance, है ना, a system by which companies are directed and controlled. And this aim, पूरा सेंटेंस भी नहीं है, ग्रामर छोड़ दो. एम इज द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज अलाइंड विद इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड क्लाइंट्स एट लार्ज. फाइन. तो एक हो गया कि वो सिस्टम क्या है एंड उसका एम क्या है. डन. कैडबरी कमेटी ने बताया था, इसी तरह से उसमें लिख भी दिया. देन नरेश चंद्र कमेटी ने भी एक बताया है. सो व्हाई आई एम राइटिंग दिस,
because I want to make sure that if any question comes regarding corporate governance, I am ready with my introduction. If not introduction, I am ready with some of the key points which I can use in the answer heading के अंदर, ठीक है, बॉडी में कहीं. तो ये कैसे बना रहे हो आप? ये खुद से कुछ चीजें मैंने सोची कि हाँ क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इन जनरल गूगल करके, एंड सम फ्रॉम टॉपर कॉपीज. फॉर एग्जाम्पल दिस वन कैडबरी कमिटी वाला, ये मैंने किसी टॉपर की कॉपी में देखा था. नरेश चंद्र कमिटी आई डिड फ्रॉम न्यूज पेपर इट सेल्फ. देन दीज थिंग्स, स्पेशली दिस रतन टाटा का जो कोट है, देन CSR इनिशिएटिव्स, दीज आर ऑल थ्रू माई करंट अफेयर्स रीडिंग एंड माई क्यूरोसिटी कि मैं गूगल करके देख लूंगी क्या चीज है. सो इसी तरह से बाकी चीजें भी है. पासपोर्ट सेवा केंद्र में क्या चीजें हो रही हैं, पुअर एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया. जैसे एक हमारे पास ना सेट ऑफ एग्जाम्पल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. सो आई मेड श्योर कि मेरे पास दूसरे टाइप की एग्जाम्पल्स भी हो जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी नहीं है, जैसे सत्यम कंप्यूटर स्कैम, नीरव मोदी स्कैम, ये सारे हैं. और इसके लिए क्या चीजें इंश्योर करनी होती है. सो वी हैव ऑडिट कमिटी के एग्जाम्पल्स, HR डेवलपमेंट. सो इसके भी पॉजिटिव एग्जाम्पल्स दैट हाउ वी मेक श्योर दैट दिस गवर्नेंस इज हैपनिंग एट बेस्ट, स्पेशली इन कॉर्पोरेट्स. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये रिपोजिटरीज ऑफ गुड एग्जाम्पल्स, बैड एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशंस और जस्ट इलेबोरेशंस ऑन द टॉपिक, इस तरह से ये रिपोजिटरी हो गई. देन अगेन एथिक्स का ये एक टॉपिक लिखा उसके बारे में, फिर उसी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स. तो सिर्फ एग्जाम्पल्स ही हैं, नथिंग मोर. फाइन. नाउ कम्स एक GS का पोर्शन, ठीक है. शैडो पैंडमिक, नॉर्मल, इट वाज इन न्यूज आफ्टर कोविड, द पैंडमिक, कोविड पैंडमिक के बाद में उसके कुछ ही विद इन अ वीक्स ये शैडो पैंडमिक भी था. सो आई मेड अ प्रॉपर नोट हियर व्हाट आई डिड. तो इसके बारे में कि व्हाट इज दिस फिनोमेना, स्पेशली इट वाज दिस इशू वाज रेज्ड बाय नेशनल कमिटी फॉर वुमेन. तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इसके बारे में लिख दिया. देन एक कॉन्टेक्स्ट जो हमारा बेसिक है, दैट व्हाट इज द नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये डेटा है, तो एक डेटा यहीं पे ऐड कर दिया. नाउ और भी जो कंसर्न्स आ रहे हैं, मैरिटल रेप पे आया वो बता दिया, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, और एग्जाम्पल्स जो बाद में ऐड आ रहे हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे नन्ही कली और सखी वाला था. देन अगेन सम एग्जाम्पल्स और डेटा फॉर अनपेड वर्क केयर इकोनॉमी. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरे पेज में सिर्फ शैडो पैंडेमिक या सिर्फ मैरिटल रेप पे नहीं लिखा है. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. अगेन फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में NSSO का डेटा लिख दिया, STEM ग्रेजुएट्स में भी डेटा लिखा हुआ है, एंड आई हैव शोन द डेटा दैट दिस इज अ डाइकोटोमी. ठीक है, डेटा को एज इट इज लिख के छोड़ना नहीं है. यू नीड टू मेक श्योर कि आप जब अपने नोट्स में लिख रहे हो वो डेटा का कोई कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट डेटा, what is the meaning of that data. So that meaning I have written here. इस तरह से आप लिख सकते हो किसी भी डेटा के बारे में. यहाँ पे जैसे ये मीनिंग ऑलरेडी है इधर ही, साइटल शेम, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी यहाँ पे दिख रही है, तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का ये डेटा आप आराम से यूज. फाइन. देन वेरियस बेस्ट केस प्रैक्टिसेस और सम टास्क फोर्स है ना, किस किस चीज़ों पे बनी है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स अगेन. एंड देन अगेन कुछ भी एक्स्ट्रा आ रहा है, जैसे जस्टिस वर्मा कमिटी का कुछ आया है, सो ऐड करो, इसमें आ गया है. देन फर्दर जो भी चीजें याद आ रही हैं. नेक्स्ट इज अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी. नाउ दिस आई वुड से दिस इज माय शॉर्ट नोट. कैसे, अब यहाँ देखो, आई हैव रिटन द मीनिंग ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. ऐसे डायरेक्ट पूरा नहीं लिखा, जो ब्रेकडाउन की मैं बात कर रही थी, आई यूज 3 पॉइंटर्स हियर. एक इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब है कि इट प्रोटेक्ट्स सोवरेनिटी. ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स सोवरेनिटी, एंश्योर्स लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेन्स पीस एंड हार्मनी. फाइन. समटाइम्स एकदम से सारी चीजें अगर नहीं आपको याद हो रही है या फिर आप भूल जाते हो, यू टेंड टू फॉरगेट मे बी वन एस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डेफिनेशन, सो यू राइट इट लाइक दिस एंड यू विल नेवर फॉरगेट. इसी फॉर्मेट में आप याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ठीक है, समथिंग वाज रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, सोवरेनिटी से रिलेटेड था, एंड देन पीस से भी रिलेटेड था. ओके, और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज हो गए. स्पेशली दिस इज फॉर पीपल हु फील दैट दे आर
लो ऑन वोकेबलरी, उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, या दे डू नॉट यूज डाइवर्स कीवर्ड्स, तो यू कैन यूज दिस। नाउ थ्रेट्स आ गए, इंटरनल थ्रेट्स, एक्सटर्नल थ्रेट्स, दोनों का डिफरेंस हो गया। नाउ कम्स द चैलेंजेस, व्हाट इज द चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड? तो हियर आई हैव ट्राइड, मैंने एक सा मार्क तो नहीं किया है, बट आई हैव ट्राइड कि मैं 2/3 पेज में ही लिख रही हूँ, ऑल द पॉइंटर्स, द एग्जाम्पल्स, तो एक छोटी सी लाइन ही लिखी है ना। टेररिज्म स्प्रेड बाय पाकिस्तान इन कश्मीर, मिलिटेंसी इन JNK, बहुत पुराने नोट्स हैं। सो आपके पास जैसे जैसे आप इसमें कुछ और ऐड कर सकते हो। सो व्हाट आई हैव डन हियर, आई हैव नॉट यूज्ड अ प्रॉपर सेंटेंस, बस जितने में समझ आ जाए उतना ही लिखा है। आर्म्स ट्रैफिकिंग एंड फंडिंग टू इंसर्जेंट ग्रुप्स, LWEs एज कॉन्स्टेंट थ्रेट, ठीक है। डेटा थेफ्ट बाय कंट्रीज टू यूज इट फॉर मैनिपुलेशन, साइबर अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आप डायरेक्टली बता दो, बहुत सारे हैं, तो यू हैव एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जो आप ऐसे ऐसे यूज कर सकते हो। ओके, दिस आई हैव मेड, मतलब आई मेड इट आफ्टर गिविंग सम ऑफ द टेस्ट ऑफ GS3, ठीक है। टेस्ट कैसे, PYQs लिख के यहाँ पे समझ आ गया कि कैसे लिखना है, फिर उसमें एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऐड हो गए बाद में, कुछ मैंने यहाँ किए, कुछ मैंने किए भी नहीं फर्दर, बिकॉज आई मेड सम रिपोजिटरीज एट वन गो, जैसे अभी मैंने दिखाया ना अबाउट दिस। हाँ, इस टाइप से तो एक ही पेज में काफी चीजें कवर हो गई है, एग्जाम्पल्स वगैरह। सो आई डिड नॉट अगेन एडेड हेयर। दिस इज अगेन फ्रॉम एथिक्स, टॉलरेंस का एक मैंने बता दिया। अगेन आई हैव यूज्ड सम ऑफ द कोड्स, डिफरेंस टाइप दे दिए, एग्जाम्पल्स हो गए, खत्म। ओके, देन दिस इज अगेन ऑफ GS3 बट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज है, रेलवेज का भी अगेन डेटा हो गया। यहाँ पे आई हैव प्रोबेबली कुछ कुछ चीज़ों में, कुछ जगह पे मैंने लाइन वगैरह खींच के प्रॉपर किया है। सो अगेन यहाँ पे ये एडिशंस हैं, बाद में बनाए हैं मैंने, अबाउट द नेत्रा सेटअप, ट्रेन कोलिजन, मर्जिंग ऑफ बजट्स, सर्विसेज, और कुछ कुछ सेतु भारतम, IRCTC का कुछ यहाँ पे डेटा, एवरीथिंग आई हैव एडेड लेटर। बाकी ये इश्यूज तो मेजरली कॉमन ही रहते हैं। अगेन फाइन, नाउ सी, दिस इज अ शॉर्ट नोट which is given in Conquer. Okay, Conquer program at Understand UPSC. Most of you would be knowing. तो यहाँ पे भी कैसे दिए हैं ये शॉर्ट नोट्स? शॉर्ट नोट्स में आपके पास में सारी मेजर मेजर चीजें हैं, देयर आर नो प्रॉपर सेंटेंसेस। जैसे साइबर सिक्योरिटी आपने रेफर किया, तो यू हैव डेटा की 3000 प्लस साइबर इंसिडेंट्स पर वीक होते हैं, राइट। थर्ड इन नंबर ऑफ फिशिंग अटैक, कौन? यहाँ पे हमारे इंडिया की बात हो रही है। अगेन डेटा, तो ये पूरे डेटा डेटा डेटा, एंड देन देयर इज अ कोड, cyber security is an integral part of national security. You could also use another quote, है ना, maybe something which has come in newspaper or you have encountered it in any test series या PYQ का कोई आपको एक स्टेटमेंट अच्छा लग गया, है ना। तो साइबर सिक्योरिटी पे कुछ भी छोटा, बहुत बड़ा नहीं, 1 और 2 लाइन का कोट वो आपने ऐड किया। एलिमेंट्स ऐड हो गए ये सारे इन अ हब एंड स्पोक मॉडल, एंड देन वी हैव टाइप्स। सो इस तरह से ज्यादा नहीं है, बहुत ही बेसिक चीजें लिखी हुई हैं। ऑब्वियसली यू नीड टू मॉडिफाई इट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो नोट्स आपको तभी समझ में आएंगे कैसे बनाने हैं जब आपने खुद से प्रैक्टिस की हो एंड यू हैव एनालाइज्ड ऑल योर टेस्ट। ये नहीं कि आपने लिख के छोड़ दिया है एंड यू आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन द इवेल्युएटर और एक्सटर्नली किसी और पे। सो यू नीड टू मेक श्योर कि मैं अपने आंसर से हर बारी सीख रही हूँ। ओके, सी और भी चीजें हमने देखी हैं। तो लाइक हियर वी हैव स्टेप्स बाय इंडिया। सो यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, आप किसी के नोट्स आपने रेफर किया, ASAT टेस्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ DSA DSRA, इंडियन स्पेस पॉलिसी। सो इंडियन स्पेस पॉलिसी तो आपने लिख दिया 2023, बट दिस इज नॉट हाउ यू राइट इन योर आंसर्स इफ यू आर आस्क्ड अबाउट मेजर्स। तो इफ मेजर्स हैज बीन आस्क्ड, तो आपको पॉलिसी के साथ बताना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली आर दोज मेजर्स अंडर दिस पॉलिसी। सो एक दो पॉइंट्स आपको इसके याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है, ठीक है, इफ यू कैन नॉट रिकॉल, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबली आप लिख दो, है ना, राइट इट डाउन। इफ यू हैव नॉट रेफर्ड इट, मे बी नॉलेज गैप है, आपने देखा ही नहीं है, सो प्रोबेबली यू नीड टू मेक अ सेपरेट नोट, एक 1 पेजर आप बना लो just to cover this policy. Why I'm trying to tell you this? Because when we refer to anybody's notes directly, तो उन्होंने क्या लिखा है जो उनको याद रहता है,
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा है। प्रोबेबली दीज आर द थिंग्स दे वांट टू रिमेंबर, एंड बैक एंड पे उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वो बैक एंड का उनको यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो व्हेन वी वर्क इन अ सिस्टम, कुछ पोर्शन बैक एंड होता है, कुछ आपका फ्रंट पे होता है। तो ये जो फ्रंट पे आपको टेस्ट ये नोट्स दिख रहे हैं ना, दिस इज नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ वट एवर इज कमिंग इन योर माइंड। सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग इट अकॉर्डिंग टू यू, है ना। ऐसा ना हो कि किसी और के नोट्स को आप अपनी पूरी तरह से बना के खत्म कर रहे हो। फाइन, सो यूज देम फॉर योर ओन एडवांटेज एंड फिल्टर आउट वट एवर इज नेसेसरी। नाउ कोचिंग नोट्स आर डन. These were the references only for you to know कि you can make pages according to your need, whatever you feel. ये एकदम last minute वाले होते हैं. If you feel you can make this on your own by your own understanding and learning your code, then it's fine. Else you can directly refer to this. You can, but इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, right? खुद से या help लेके. Now coming to my basic book notes. In sociology specifically, I didn't make separate notes. Base notes मतलब मैंने नहीं बनाए थे कभी. I made only revision sheets एकदम last में towards the mains. So what I did, I used to use my book only. जैसे मैंने ये latent and manifest function पढ़े. Okay, manifest का यहाँ पे लिख दिया reference, latent का यहाँ लिख दिया. Picture थोड़ी clear नहीं है. Radcliffe के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, and यहाँ पे Weber लिखा है. देन ये जो मैंने पेन से मार्क किए हैं, सी ये जो ग्रेइश है, दिस इज माय पेंसिल, एंड देन ये पेन से मैंने मार्क किए हैं, दीज आर सम ऑफ द कीवर्ड्स आई वांट टू रिमेंबर. जैसे सब्जेक्टिव डिस्पोजिशंस, माइक्रो एस्पेक्ट, नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच. आई वांट टू कॉन्स्टेंटली यूज दिस इन माय आंसर्स बिकॉज आई टेंड टू फॉरगेट. मेरे लिए न्यू है, अभी उतना ढंग से याद नहीं है. सो देन दिस slavery as a manifest function, latent function as the this vast underclass and all of this thing. ये मैंने कर लिया अपना रेफर. Then there is a reference group theory which is not elaborately mentioned here, तो मैंने वो यहाँ पे लिख लिया साइड में. ओके, फिर एक एग्जाम्पल है होपी ट्राइब. अगेन अब ये जो है ना, सी एक बुक का नाम लिखा हुआ है, एंड आई एम नॉट वेरी गुड एट रिकॉलिंग बुक नेम्स इन सोशोलॉजी. सो व्हाट आई डिड लास्ट में कि हाईलाइट कर दिया इसको, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर. ओके, दिस सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर. अब मुझे याद रखना है कि हाँ ठीक है, बाकी चीजें तो मेरे दिमाग में फिट हो गई हैं. I need to recall this again and again. So when I flip the pages again, I will focus only on the highlighted portion, not all these things. तो ये मेरे लिए पढ़ना नहीं है फिर. फाइन, बाकी भी एग्जाम्पल्स हो गए. गैम्बलिंग कहाँ पे बैन हुई है, रेप का एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने यहीं पे ऐड कर दिया. फाइन, नाउ कम्स अनदर पेज. हियर the three major postulates of Merton has is written. ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे को अलग से इसके नोट्स बनाने की जरूरत है. आई विल जस्ट रेफर दिस ओनली. वहीं पे मैंने ऐड कर लिया कहाँ पे मुझे DOL करना है, कहाँ पे मुझे फैमिली. ये एग्जाम्पल्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स है विच आई वॉन्ट मी टू यूज इन द एग्जाम. सो मैंने इसलिए यहीं पे ऐड कर दिया, कुछ अलग से नहीं किया. सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही है. ओके, ये रेफरेंसेस बस मैंने आपको इसलिए दिखाया दैट बेस नोट्स जरूरी नहीं है कि आपको सेपरेट ही बनाने हो. ओके, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से कई बार आ चुका है. तो फॉर इंडियन विलेजेस स्पेशली दिस पार्ट, द विलेज स्टडीज पे बहुत क्वेश्चन आता है. तो आई हैव यूज दीज 8 or I think these are 10-11 points. So I've used all these, highlighted the portion, ठीक है, and mapped it with the thinker कि कहाँ पे किसने बात करी. जैसे यहाँ पे मेटकैफ ने बोला है about the contest of the dominant stereotype. Then MNS ने बोला हुआ है about the dominant book view, और फिर उसमें examples भी दिए हैं. Then इरावती कार्वे ने बोल रखा है the studies by Carve and Colinda. So this is about the homogeneity in the entire contest. फिर हमारे पास factions की study है by SC Dubey. Then we have Jajmani system and all. So whatever I
अंडरस्टूड है ना, जो मैंने प्रोसेस करने के बाद, सो देयर इज अ होल एंटायर चेन। उसके बाद जाकर मैंने ये लिखा है एंड आई यूज टू रेफर टू दिस ओनली। फिर मैं ये पूरा पैरा नहीं पढ़ रही है ना, इतने पे ही काम हो रहा है फाइनली। एंड ये पर्टिकुलर चीज मुझे कंक्लूजन के लिए अच्छी लग रही है, सो आई मेंशन कि दिस इज गुड फॉर माय कंक्लूजन। नाउ लाइकवाइज आई मेड अनदर, ठीक है, ऑल द हाईलाइटेड पार्ट्स आई वुड रीड, एल्स नॉट। यहाँ पे भी जैसे कंक्लूजन के लिए अच्छा लगा तो ये मैंने मेंशन कर दिया। ओके, हियर अगेन दिस इज फ्रॉम पेपर 2, माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सो आई हैव डिवाइडेड दिस हेयर ओनली कि कौन से इकोनॉमिक हैं, कौन से पॉलिटिकल हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी, कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होंगे, राइट? ओके, सो what am I doing here throughout the process? I am first receiving the information, ठीक है, रिसीव किया, इनपुट मिला, I got familiar with the topic, with the concepts, and then I processed it, ठीक है। ये प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है? दिस इज इनसाइड आवर माइंड, नॉट ऑन पेपर। आप पेपर पे कितना मर्जी लिख लो, आपको नहीं याद होगा। Fine. So processing is important. You need to indulge in that study, indulge in the visuals, either by your imagination or using some animations या maps वगैरह जैसे हमने बात करी। So here learning is happening, okay? Not rote learning, but the basic learning, the conceptual learning, ठीक है। तो learning यहाँ पे आप करके अब आपको इसे compress करना ठीक है। जो भी आपने समझा, इन्फो लोड हो गई है ना, यू हैव एनकोडेड इट, नाउ कंप्रेस करके छोटा करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा रोट लर्न करना पड़ेगा, एंड देन यू नीड टू रिट्रीव, दैट मीन्स यू नीड टू रिकॉल एक्टिवली कि कहाँ पे पढ़ा था, क्या चीजें यूज करनी है। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस, और इसी के अकॉर्डिंग हम अपने नोट्स बनाते हैं। सो डिफरेंट नोट्स एज हमने देखे, इनपुट बेसिक स्टैंडर्ड सोर्सेस से, प्रोसेस करना है खुद से with using your base notes obviously for revision, then you need to compress them into short notes, ठीक है। ये compress करोगे after a while and then finally retrieve करोगे, और जो चीजें नहीं याद आ रही हैं उसके लिए आप एक rapid revision sheets बना लोगे। Fine. The repositories, now I think you must have understood the why, how and when of note making, एंड प्लीज इस पूरी वीडियो से अगर कोई एक टेक अवे लेना है तो ये लेके जाना है दैट नोट्स डोंट वर्क सिमिलरली फॉर एवरीवन। आपको अपना कोड देखना है, मेरा लर्निंग स्टाइल क्या है, मुझे कैसे चीजें याद रहती हैं, हाउ डू आई प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, एंड ट्राई टू मूव फ्रॉम वन सिंगल आइडेंटिटी टू बी अ कनेक्टर, ठीक है, जहां पे आप चीजें आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली वी नीड टू राइट मल्टी डायमेंशनल आंसर्स, वी नीड टू राइट many points, so we need different perspectives, we need different pointers, तो उसके लिए हमें मूव थोड़ा करना पड़ेगा, बट दैट विल हैपन ग्रेजुअली, अपने आप नहीं होगा, पुश करने से नहीं होगा, ज्यादा फोर्सफुल पुश से नहीं होगा, इजिली हो जाएगा व्हेन यू डू दिस प्रोसेस। यू नो कि हाँ इसी तरह चीजें होती हैं वन ऑन वन करके। फाइन, सो आई होप दिस हैज सॉल्व्ड one of the major doubts in our preparation, and if you have any further doubt, please comment down and we'll meet in the next video. Till then, bye bye, take care.